السلام علیکم. میں سب سے پہلے وسیلہ اردو چینل کی طرف سے تمام نظم گو شعراء کا استقبال کرتا ہوں. یہ تاریخ اردو ادب کا پہلا مشاعرہ ہے جو خالص نظم گو شعراء کو مدعو کیا گیا ہے. شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب تعبیر کی شرح میں نظم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ منظوم تحریر جو غزل نہ ہو نظم ہے. مزید کلیم الدین احمد کا حوالہ لے کر فرماتے ہیں کہ نظم باربط خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے اور وہ خیال جس کے بیان میں آغاز، ترقی اور انتہا کی کیفیت پائی جاتی ہے. انتشار خیال غزل کی خصوصیت ہے تو ارتکاز خیال نظم کی اہم خصوصیت ہے. ارتکاز خیال کو منظم انداز میں پیش کرنے کے لیے میں جناب سعید نظر صاحب سے التماس کرتا ہوں جو اس مشاعرے کے صدر بھی ہیں اور وہ اپنے صدارتی کلمات اور نظم سے ہمیں محظوظ فرمائے. نظموں پر مشتمل مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وسیلہ اردو ٹی وی اپنے نت نئے تجربات کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا میں اپنی منفرد پہچان کو استحکام بخشے گا. غزل، ربائی، خطا، قصیدہ، مثنوی، ترجیح بند، مسدس، سانیٹ، ترائلے، شاعری کی کئی قسمیں ہیں جنہیں اظہار کا وسیلہ بنایا گیا ہے. یہ قسم نظم بھی ہے. نظم دلی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے. پابند نظم جس میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں. نظم معرہ جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی. ان دنوں اردو ادب میں نظم معرہ کثرت سے کہی جانے والی نظم ہے. نثری نظم کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ نظم نہیں بلکہ ایک نثری پارہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. گہرا مطالعہ، لفظوں سے شناسائی آپ میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور کچھ کہنے پر آمادہ بھی. نظم کے تسلسل کو برقرار رکھنا ضروری ہے جس سے آپ کا آہنگ مجروح نہیں ہوتا. اختتامیہ مصرعے ہی نظم کی جان ہوتے ہیں جن کے ذریعے شاعر اپنی بات کو قاری اور سامع پر انکشاف کرتا ہے. فکر کی آفاقیت کو نظموں میں ملحوظ رکھا جائے. جس شدت کے ساتھ الفاظ ذہن و دل میں آتے ہیں اسی شدت کے ساتھ لفظوں کو صفحہ خطاط پر رکھ دیں تو یہ اثر قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں. بہترین شعری فن پارہ شاعرانہ خیال اور شاعرانہ بیان کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے. شاعری کے لیے صرف خیال کا ہونا ضروری نہیں بلکہ خیال کا شاعرانہ ہونا ضروری ہے. اسی شاعرانہ خیال کو لفظوں کا سانچہ عطا کرنے والا ایک شاعر جناب پروفیسر کلیم ضیاء سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے، وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے. جناب صدر، معزز شعراء اکرام، سامعین محترم اور ناظرین اکرام، میں بےحد شکر گزار ہوں وسیلہ اردو چینل کا اور بطور خاص محمود شاہد صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس نظمیہ مشاعرے میں مدعو کیا ہے. میں حاضر ہوں اور ایک نظم بعنوان رہبری چھین لو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہوں انشاءاللہ. بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو،
اور اپنی چھینی گئی ہر خوشی چھین لو. بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو, اپنی چھینی گئی ہر خوشی چھین لو. اور عرض کیا ہے کہ ظلم کے زور پر وہ بڑا ہو گیا, ظلم کے زور پر وہ بڑا ہو گیا, مفلسوں کے لیے بس کڑا ہو گیا, اور مالداروں کے حق میں کھڑا ہو گیا. بے حسی میں وہ چکنا گھڑا ہو گیا, اس کو بخشی ہوئی ہر خوشی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. بہت شکریہ. اگلا بند سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ ہر خوشی اس کی لوگوں سے نفرت میں ہے. غور فرمائیں جناب, ہر خوشی اس کی لوگوں سے نفرت میں ہے, ساری دلچسپی بس اپنی شہرت میں ہے, زندگی اس کی اب عیش و عشرت میں ہے, جھوٹ ہی جھوٹ جاہل کی فطرت میں ہے, جھوٹے مکار سے برتری چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. اگلا بند سماعت فرمائیں کہ اس کے آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی. عرض کیا ہے کہ اس کے آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی, اس کے اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی, کھیتی عظمت کی بڑھ کر تو سینچے کوئی, ڈھیلی رسی کو اب اس کی کھینچے کوئی, اس مداری کی اب ڈگڈگی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو, اس مداری کی اب ڈگڈگی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. سماعت فرمائیں. وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے. غور فرمائیں. وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے, ساری دنیا ہی اس سے پریشان ہے, اور پورے عالم کے حق میں وہ نقصان ہے, اور نتیجے سے اپنے وہ انجان ہے. اس کے ہونٹوں کی ظالم ہنسی چھین لو, اور بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. اس کے ہونٹوں کی ظالم ہنسی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. اور اگلا بند سماعت فرمائیں کہ جو بھی کہتا ہے اس کو وہ کرتا نہیں. عرض کیا ہے کہ جو بھی کہتا ہے اس کو وہ کرتا نہیں, کوئی بھی بات کانوں پہ دھرتا نہیں, جو گڑھے اس نے کھودے وہ بھرتا نہیں, اپنے اعمال بد سے وہ ڈرتا نہیں. اس پہ چھائی ہے جو بے حسی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. اس پہ چھائی ہے جو بے حسی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. آخری بند سماعت فرمائیں آپ, مقطع کا بند ہے کہ کہہ رہا ہے کسان آج بفرا ہوا. سب کو اندازہ ہے کسانوں کی بھی کیا حالت ہو گئی. کہہ رہا ہے کسان آج بفرا ہوا, حکمران بھکاری ہمیں کر دیا, اس قدر ظلم بھارت پہ اس نے کیا, آج بے بس ہے ہر شخص دیکھو ضیا, اب حکومت ہی کم ظرف کی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. اب حکومت ہی کم ظرف کی چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو. ہر خوشی اس کی لوگوں سے نفرت میں ہے, ہر خوشی اس کی لوگوں سے نفرت میں ہے, ساری دلچسپی بس اپنی شہرت میں ہے, زندگی اس کی اب عیش و عشرت میں ہے, جھوٹ ہی جھوٹ جاہل کی فطرت میں ہے, جھوٹے مکار سے برتری چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو, بڑھ کے رہزن سے اب رہبری چھین لو, اپنی چھینی گئی ہر خوشی چھین لو. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. نظم کی بنیادی صفت وحدت ہے, جس کا ایک تفاعل ربط و تسلسل ہے. یہ ربط و تسلسل کئی طرح کا ہوتا ہے, اور ہر نظم کے ساتھ اور ہر قسم نظم کے ساتھ بدلتا ہے. انہیں فنی خوبیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نظم کہنے والا شاعر جناب ڈاکٹر امام اعظم ہے, جو کلکتہ سے تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائیں. چند نظمیں حاضر ہیں, سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ایک تازہ نظم جس کا عنوان ہے پھول سے شعلہ بن جائیں. او حامی خطوں میں بٹ کر
ताने माने बुनने का आगाज गलत है। सन्नाटों से उठने वाला झूठ का हर अंदाज गलत है। लफ्ज सियासत के हथकंडे, शैतानी हलचल के किस्से, जहरीली खूंखार के शोले जब जब धरती पर फैलेंगे, जितने भी तूफान छुपे हैं अमन व अमान की तह के अंदर, कुर्बानी के जोर अमल का, आंचल से परचम बनने का, शबनम से पत्थर बनने का एक नई तारीख सजेगी। कर्ब अलम के इस खंडहर में रोशन रोशन प्यारे लम्हे शाहीनी परवास की सूरत पर फैलाए। जमहूरी ताकत की सदाएं नारे बनकर जा उठेंगी। धर्म सियासत प्रेम अहिंसा उजले उजले तन वालों के कुछ मासूम आदाब हैं शायद, अपनी इस्तिज़ात के खातिर कुछ बोझल असबाब हैं शायद। ये है तख्तो ताज का नशा, तेरी झूठी शान का नशा, झूठे सपने बांटने वालों सुन लो ये तारीखी बातें। शाम को धरती कजलाती, शाम को धरती कजलाती है, कोना कोना छुप जाती है। उस दिन बेकल पागल धरती आंखें खोल के जब पूछेगी, उल्टी गिनती गिनते गिनते थक जाओगे। मौसम का हर एक इशारा ऐसा जादू फैला देगा। करिया करिया गली गली से एक मुसर्रत जा उठेगी। मुल्क की अजमत, मुल्क की फितरत बाकी रखकर हम सब मिलकर कदम कदम यकजा हो जाएं। हक की आवाज उठाएं, हक की अब आवाज उठाएं, फूल से अब शोला बन जाए। दूसरी नजर समाप्त फरमाएं। इरशाद अर्ज किया है, भी उन्वान है बीच का वरक़। ये बरक़ुबार सलामत रहें न रहें, मगर ये वक्त की रफ्तार रुक नहीं सकती। पलट रहा हूँ कैलेंडर का हर वरक़, फिर भी समेटता हूँ तो लम्हे सिमट नहीं पाते। घड़ी के हाथ मेरी दस्तरस से बाहर हैं, गुब्बारे राहें सफ़र भी धुआं धुआं सा है। मैं सोचता हूँ मगर सोच भी नहीं सकता कोई भी रब मेरी जिंदगी की वहशत से कोई सुराग लगाती। कहाँ ये मुमकिन है ये जिंदगी भी कोई बीच का वरक़ तो नहीं। नज़्म के लिए ज़रूरी है कि ख़यालात की तर्जुमानी में रब्त और तसलसल का ख़ास ख्याल रखा जाए। ख़यालात में अगर इंतशार हो तो रब्त और तसलसल की कैफियत में बाकी नहीं रह सकती। रब्त और तसलसल को नज़्म की सूरत अता करने वाली शख्सियत का नाम जनाब बद्र वास्ती है। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वह अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। इस नज़्म का उन्वान है अम्मा तुम भी साथ आओ ना। जी हाँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। नज़्म कुछ यूँ है कि उस चिड़िया को शाख पर रहने दो, उस चिड़िया को शाख पर रहने दो, जिसके आने से पहले मैंने झटपट दूध पिया था। उस चिड़िया को शाख पर रहने दो, जिसके आने से पहले मैंने झटपट दूध पिया था। और हाँ वो शाख भी रहने दो, और हाँ वो शाख भी रहने दो, वरना चिड़िया कहाँ बैठेगी, वरना चिड़िया कहाँ बैठेगी। उस बाबा को भी आने दो, उस बाबा को भी आने दो, जिसके डर से मैं दुबक झपक कर सो जाता था। उस बाबा को भी आने दो, जिसके डर से मैं दुबक झपक कर सो जाता था। उस रास्ते पर निडरता का पेड़ मत लगाओ, उस रास्ते पर निडरता का पेड़ मत लगाओ, वरना बाबा गुम जाएगा, वरना बाबा गुम जाएगा। उस गुड़िया को भी बस्ते में रहने दो, उस गुड़िया को भी बस्ते में रहने दो, जिसकी शादी में मैं समधी था। उस गुड़िया को भी बस्ते में रहने दो, जिसकी शादी में मैं समधी था। मुझे स्कूल बस में अकेला मत बिठाओ, मुझे स्कूल बस में अकेला मत बिठाओ। अम्मा तुम भी साथ आओ ना, अम्मा तुम भी साथ आओ ना। एक नज़्म और पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा।
नज़्म यूँ है कि दीवारें दुआएं मांगती हैं, दीवारें दुआएं मांगती हैं, अंधी और बेहिस हो जाने की, दोबारा मिट्टी होकर किसी क्यारी किसी खेत का हिस्सा बन जाने की, दोबारा मिट्टी होकर किसी क्यारी किसी खेत का हिस्सा बन जाने की दीवारें दुआएं मांगती हैं। ये दीवारें कब्र की दीवारों से भी ज़्यादा बदतर हैं, ये दीवारें कब्र की दीवारों से भी ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि कब्र की दीवारों के दरमियान रूह निकल जाने और ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि कब्र की दीवारों के दरमियान रूह निकल जाने और ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ किसी जिस्म को लाकर रखा जाता है, इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ किसी जिस्म को लाकर रखा जाता है। मगर इन दीवारों के बीच ज़िंदगी शुरू होते ही वहशत और नफ़रत के साथ जिस्म फेंक दिए जाते हैं, मगर इन दीवारों के बीच ज़िंदगी शुरू होते ही वहशत और नफ़रत के साथ जिस्म फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर ये दीवारें चीख भी नहीं सकती, जिन्हें देखकर ये दीवारें चीख भी नहीं सकती। अनाथालय की इन दीवारों की आवाज़ सुनने वाला भी तो कोई नहीं, अनाथालय की इन दीवारों की आवाज़ सुनने वाला भी तो कोई नहीं। इन जिंदगियों को बचाने के लिए अब कोई नबी नहीं आने वाला, इन जिंदगियों को बचाने के लिए अब कोई नबी नहीं आने वाला। तो दीवारें दुआएं मांगती हैं, अंधी और बहस हो जाने की, दोबारा मिट्टी हो जाने की दीवारें दुआएं मांगती हैं, दीवारें दुआएं मांगती हैं। आदाब, एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं क्यों लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कब से लिख रहा हूँ मैं, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मैं क्यों लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कब से लिख रहा हूँ मैं, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मेरे अशार में अक्सर ये किसका जिक्र होता है, मेरे अशार में अक्सर ये किसका जिक्र होता है। शबें सोकर गुजरती हैं कि बस आँखों में कटती हैं, शबें सोकर गुजरती हैं कि बस आँखों में कटती हैं। मुझे तन्हाई भाती है कि महफिल अच्छी लगती है, वो महफिल किसकी महफिल है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। वो महफिल किसकी महफिल है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। कोई जब शेर सुनाने की कभी फरमाइश करता है, कोई जब शेर सुनाने की कभी फरमाइश करता है, मैं अक्सर टाल देता हूँ, कभी पीछा छुड़ाता हूँ। तो पीछा क्यों छुड़ाता हूँ, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। तो पीछा क्यों छुड़ाता हूँ, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। और मुझे मिलना था जिससे मैं मिला हूँ या नहीं उससे, मुझे मिलना था जिससे मैं मिला हूँ या नहीं उससे। वो जिसके ख्वाब देखे थे, वो जिसको दोस्त समझा था, कहाँ है वो बताओ ना कि मुझको किससे मिलना था। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे, कहाँ है वो बताओ ना, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मैं हंसता हूँ तो क्यों आंखें ज़रा सी नम ही रहती हैं, मैं हंसता हूँ तो क्यों आंखें ज़रा सी नम ही रहती हैं। कभी कुछ बोलता हूँ या किसी से बात करता हूँ, अचानक रुक भी जाता हूँ, कहीं कुछ खो सा जाता हूँ। अचानक रुक भी जाता हूँ, कहीं कुछ खो सा जाता हूँ, या मैं कुछ भूल जाता हूँ। किसी की याद आती है तो किसकी याद आती है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। तो किसकी याद आती है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। और कोई खुशबू है जो मुझको हमेशा मस्त रखती है, कोई खुशबू है जो मुझको हमेशा मस्त रखती है। बड़े बिखराव में भी वो समेटे मुझको रखती है, बड़े बिखराव में भी वो समेटे मुझको रखती है। दुखों की भीड़ में हरदम दिलासे देती रहती है, दुखों की भीड़ में हरदम दिलासे देती रहती है। बहुत मैं मुतमईन रहता हूँ एक दरवेश की सूरत, बहुत मैं मुतमईन रहता हूँ एक दरवेश की सूरत। सफ़ेदी के सिवा कोई रंग अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा क्यों नहीं लगता, तो अच्छा क्यों नहीं लगता। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं होते। तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं होते। अगर यूं है तो यूं क्यों है, मगर ये है तो ये क्या है। अगर यूं है तो यूं क्यों है, मगर ये है तो ये क्या है। ये जिसको पूछना था बस उसी ने कुछ नहीं पूछा, ये जिसको पूछना था बस उसी ने कुछ नहीं पूछा, तो उसने क्यों नहीं पूछा। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे,
ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। नज़्म शायर की दाखिली और ख़ारिजी ज़िंदगी की बेहतरीन तर्जुमानी करती है। मुअस्सर शायरी दाखिलियत की बिना पर वजूद में आती है। बात दिल से निकलती है तो दिल पर असर करने की सलाहियत रखती है। अपनी शायरी में दाखिली और ख़ारिजी खुसूसियात को वाज़ेह तौर पर बयान करने वाला शायर जनाब अफरोज़ आलम है। मैं जनाब अफरोज़ आलम जिद्दा से तशरीफ़ फरमा, उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। मैं शायरी हूँ, मैं शायरी हूँ। मेरा वजूद तो समय के पहिए के साथ ही रवां दवां रहता है, लेकिन मेरी दुनिया में तमाशा और तकरीर का कोई वजूद नहीं। जादू टोना करतब वर्तब ताकत वाकत ये सब मेरे उफ़क़ के उस पार की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं शायरी हूँ। हाँ, मैं शायरी हूँ, इसलिए अलीगढ़ के किसी नाम नेहाद तालिब इल्म की तकरीर नहीं, बल्कि महादेवी वर्मा की तहरीर हूँ। एक खूबसूरत आवाज़ की तासीर हूँ। हाँ, मैं शायरी हूँ। मैं ज़मज़म हूँ, मैं गंगा हूँ, बैरागी के हाथों का एक तारा हूँ। मैं किसी मदमस्त के हाथों का त्रिशूल नहीं, बल्कि देवी सरस्वती के हाथों का फूल हूँ। हाँ, मैं शायरी हूँ। मैं किसी सरफिरे का गुजरात नहीं, मैं तो हर हाल में देहात हूँ। नाजुकी मेरे लब का गहना है और मैं नवाए सरोश हूँ, क्योंकि मैं गुलाब की एक पंखुड़ी हूँ। हाँ, मैं शायरी हूँ। हाँ, मैं शायरी हूँ। मेरी नज़्म तग़य्युर। ज़माना जब खामोशी से नए तेवर में ढलता है तो मौसम खुश्क होता है, शजर कपड़े बदलता है। कभी तो भीगी शाखें आग के गोले उगलती हैं, कभी तो बर्ग गुल तिर्याक के असबाब बनते हैं। शजर की मुख्तलिफ शाखें हमेशा साथ रहती हैं, समर भी साथ देती हैं, वो साए की भी जामिन है। शजर की शाखों की है अहमियत मौसम बदलने में। यही शाखें जो अक्सर मौसमों का रुख बदलती हैं, अगरचे सूख जाएं तो यही ईंधन भी होती हैं। ये शाखें जो कभी आपस में लड़ने पर उतर आएं, कभी दस्तों गिरेबा हों तो अक्सर अपनी उलझन से नया माहौल देती हैं। जरूरी ये नहीं कि वो नया माहौल सबके मन मुआफिक हो, सभी को रास आ जाए। न जाने क्यों मुझे कुछ अरसे से अब ऐसा लगता है, न जाने क्यों मुझे कुछ अरसे से अब ऐसा लगता है, नया मौसम लहू की झील में गोते लगाएगा। नया मौसम लहू की झील में गोते लगाएगा। आइए इस फजा को और मोतबर बनाने के लिए मैं पाकिस्तान से तशरीफ़ फरमा एक ऐसी शायरा को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिनकी लफ्ज़ों की महक दूर से पहचानी जा सकती है। इश्क के ताल्लुक़ से अपने नज़रियात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने का हुनर रखने वाली शख्सियत मोहतरमा डॉक्टर शाहीन नजमा से इल्तिमास करता हूँ वो आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। नज़्म का उन्वान है अजीब होती है ये मोहब्बत। अजीब होती है ये मोहब्बत, नसीब वालों के दिल में जब भी ये जागती है तो पहले नींदें उजाड़ती है। अजीब होती है ये मोहब्बत, नसीब वालों के दिल में जब भी ये जागती है तो पहले नींदें उजाड़ती है। ये झूमती है, ये नाचती है, ये फैलती है, ये बोलती है,
हर एक लम्हा हर एक वादे को तोलती है, अपने प्यारों को मारती है। सलीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। ये फैलती है तो पेड़ बनती है, छाँव करती ये रूप देती, ये छाँव करके भी धूप देती। कभी कभी तो बस आप अपनी रकीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। लहू की सूरत रगों में दौड़े, ये ख्वाब बनकर नज़र में ठहरे, सहाब बनकर फलक से बरसे। इसे जो दरिया में डाल आओ तो एक समंदर का रूप धारे, इसे जो सहारा में गाड़ आओ तो फूल बनकर दिलों में महके। इसे जो दीवार में भी चुन दो तो हर कली में हो अक्स इसका, हर एक गली में हो रक्स इसका। हबीब होती है ये मोहब्बत, अजीब होती है ये मोहब्बत। किसी किसी को किसी किसी को किसी किसी को नसीब होती है ये मोहब्बत, किसी किसी को नसीब होती है ये मोहब्बत। बखौल शिबली शायरी किसी चीज़ का, किसी वाक़े का, किसी हालत का, किसी कैफियत का इस तरह बयान करना है कि उसकी तस्वीर आंखों में भर जाए। अपने मुशाहिदात को नज़्म की शक्ल अता करने वाला शायर जनाब अल्तमश शम्स है। अल्तमश शम्स महाराष्ट्र से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाए। नज़्म पेश है जिसका उन्वान है धूप और साया। अर्ज करता हूँ कि जग ने देखी है आफताब की धूप, जग ने देखी है आफताब की धूप, चिलचिलाती हुई अजाब की धूप, चिलचिलाती हुई अजाब की धूप। धूप की और है, धूप की और हैं कई किस्में, धूप की और हैं कई किस्में। मुब्तला हैं फ़कीर व शह इसमें, मुब्तला हैं फ़कीर व शह इसमें। मैंने देखी है ख्वाहिशात की धूप, मैंने देखी है ख्वाहिशात की धूप, जिसमें ढूंढे जहां नजात की धूप, जिसमें ढूंढे जहां नजात की धूप। धूप सर पर कहीं जहालत की, धूप सर पर कहीं जहालत की, धूप घेरे कहीं जलालत की, धूप घेरे कहीं जलालत की। मसलकी धूप में घिरे हैं लोग, मसलकी धूप में घिरे हैं लोग। गुम रही है डरे डरे हैं लोग, गुम रही है डरे डरे हैं लोग। धूप एक इक़्तिदार की भी है, धूप एक इक़्तिदार की भी है। ऐशो इशरत बहार की भी है, ऐशो इशरत बहार की भी है। हर तरफ कूदती उछलती धूप है, अना की भरी दिमाग में धूप, जिस तरह तेज तर चिराग में धूप। बेहिसी की भी धूप आम लगे, बेहिसी की भी धूप आम लगे, झुलसी झुलसी मुझे अवाम लगे। वैसे रिश्वत भी एक धूप ही है, वैसे रिश्वत भी एक धूप ही है। ज़ौम दौलत भी एक धूप ही है। ऐसी धूपों से क्या गरज मुझको, ऐसी धूपों से क्या गरज मुझको। शुक्र है ये नहीं मरज मुझको, शुक्र है ये नहीं मरज मुझको। तजुर्बों ने मुझे बताया है, तजुर्बों ने मुझे बताया है, इसके बरक्स जो है साया है। एक तज़मीन पेश करता हूँ जिसका उन्वान है अजनबी। समात फरमाएं कि कल फिर उन्हीं साहब से मुलाकात हो गई, कल फिर उन्हीं साहब से मुलाकात हो गई। जो बात मुझको कहनी थी वो बात हो गई, कल फिर उन्हीं साहब से मुलाकात हो गई। जो बात मुझको कहनी थी वो बात हो गई। बादस सलाम मैंने किया उनसे अर्ज़े हाल, बादस सलाम मैंने किया उनसे अर्ज़े हाल। जब से मिला हूँ तुमसे तबीयत हुई निहाल, जब से मिला हूँ तुमसे तबीयत हुई निहाल। तुम में जो खूबियाँ हैं किसी और में कहाँ, तुम में जो खूबियाँ हैं किसी और में कहाँ। मुस्बत तुम्हारी फिक्र है और अज़्म भी जवां, मुस्बत तुम्हारी फिक्र है
और अज़्म भी जवां, रिश्वत के कारोबार से तुम दूर बहुत हो, रिश्वत के कारोबार से तुम दूर बहुत हो, शायद यही सबब है कि मशहूर बहुत हो, रिश्वत के कारोबार से तुम दूर बहुत हो, शायद यही सबब है कि मशहूर बहुत हो, झगड़े ये जात पात के तुमको नहीं पसंद, झगड़े ये जात पात के तुमको नहीं पसंद, नीयत तुम्हारी साफ है, अफकार भी बुलंद, नीयत तुम्हारी साफ है, अफकार भी बुलंद, रिश्तों का तुमको पास है, यारों के यार हो, रिश्तों का तुमको पास है, यारों के यार हो, अपनों के साथ गैर के भी गमगुसार हो, अपनों के साथ गैर के भी गमगुसार हो, जो बात मेरे दिल में है कहता हूँ बरमला, जो बात मेरे दिल में है कहता हूँ बरमला, तुमसे मिला तो आज ये उक्दा भी है खुला, तुमसे मिला तो आज ये उक्दा भी है खुला, इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा कि भारत के नहीं हो, लगता है मुझे ऐसा कि भारत के नहीं हो। तख्लीक़कार आम इंसानों से इसलिए भी मुख्तलिफ होता है कि वो मश्क, मुताला और मशवरे की तसलीस इख्तियार करता है, मुसलसल मश्क के ज़रिए अपनी शहरी सलाहियतों को सखील करता है, मुताले के ज़रिए रहनुमाई हासिल करता है और मशवरे की बदौलत शायरी की नोक व पलक दुरुस्त करता है। आइए मश्क, मुताला और मशवरा से अपनी शायरी को संवारने वाली शख्सियत का नाम जनाब जाहिद वारिसी है। मैं जनाब जाहिद वारिसी बुरहानपुर से इल्तिमास करता हूँ तो आए अपने नज़्म से हमें महसूस फरमाएं। एक नज़्म जिसका उन्वान है उदासियाँ पेश खिदमत है। अर्ज़ किया है कि मैं आजकल उदास हूँ, जो सच कहो तो ज़िंदगी की तलखियों के पास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, जो सच कहो तो ज़िंदगी की तलखियों के पास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ। बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा, अर्ज़ किया है कि उदासियों की कब्र में घिरी हुई है ज़िंदगी, उदासियों की कब्र में घिरी हुई है ज़िंदगी, ये बेबसी, ये बेकसी, ये बेहिसी, ये बेकली, ये आसमां की बरहमी, ज़मीं की तंग दामनी, ज़माने भर की तीरगी मेरा नसीब बन गई, ज़माने भर की तीरगी मेरा नसीब बन गई, मसरतों की रोशनी मुझे कहीं न मिल सकी, न जाने मुझसे रूठ कर कहाँ चली गई खुशी, न जाने मुझसे रूठ कर कहाँ चली गई खुशी, किसी शकिस्ता दिल की मैं बुझी हुई सी आस हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, जो सच कहो तो ज़िंदगी की तलखियों के पास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ। बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा, अर्ज़ किया है कि वो मेरा कल हसीन था कि तू था मेरा हम सफ़र, वो मेरा कल हसीन था कि तू था मेरा हम सफ़र, नई सहर पे थी नज़र, न कोई खौफ था न डर, बहार थी शबाब पर महक रही थी रह गुज़र, तू कह रहा था झूम कर रहेंगे साथ उम्र भर, तू कह रहा था झूम कर रहेंगे साथ उम्र भर, ओ संग दिल जफा शियार बेवफा सनम मगर, ये तेरा आज कैसा है कि तू है मुझसे बेखबर, मैं ज़िंदगी की राह में गमों से रोशनास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, जो सच कहो तो ज़िंदगी की तलखियों के पास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ। बंद मुलाहिज़ा फरमाइए, अर्ज़ किया है कि घिरी हुई है ज़िंदगी उदासियों के दरमियाँ, घिरी हुई है ज़िंदगी उदासियों के दरमियाँ, हुजूम गम की दास्तां करूँ मैं किस तरह बयां, न मेरा कोई राज़दां न मेरा कोई मेहरबां, बताए वक्त इम्तिहां बताए ज़ालिम आसमां, कहाँ गए वो हम कदम शरीक गम करीब जां, मैं जिनको ढूंढता हुआ इधर उधर यहाँ वहाँ, सरापा दर्द कर्ब हूँ सरापा रंजो यास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, जो सच कहो तो ज़िंदगी की तलखियों के पास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ। आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा, अर्ज़ किया है कि तवील है शबे अलम की जुल्मतों का सिलसिला, तवील है शबे अलम की जुल्मतों का सिलसिला, मसाफतों का सिलसिला, सऊबतों का सिलसिला, मुसीबतों का खिलवतों का करवटों का सिलसिला, मसरतों की चाह में निदामतों का सिलसिला, अज़ाब एहतिसाब की नवाजिशों का सिलसिला, कोई तो हो जो रोक ले अज़ियतों का सिलसिला, कोई तो हो जो रोक ले अज़ियतों का सिलसिला, संभाल कर रखे कोई के दर्द की असास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ,
जो सच कहो तो ज़िंदगी की तलखियों के पास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ, मैं आजकल उदास हूँ। अच्छी नज़्म तख्लीकार के शूरी और लाशूरी अमल के खूबसूरत इम्तिजाज से वजूद में आती है। ऐसे ही अपने शूरी और गैर शूरी अमल को नज़्म की शक्ल अता करने वाली शायरा जनाब मोहतरमा इफ़्फ़त फरीदी से इल्तिमास करता हूँ, जो कर्नाटका से तशरीफ़ लाई है। मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ। मैं इफ़्फ़त फरीदी बेंगलोर से आपके सामने एक नज़्म पेश करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है एक पंछी की फरियाद। पेश है। सय्याद कितना जालिम, सय्याद कितना जालिम है तू, तुझे कहानी अपनी ये बेज़ुबानी मैं सुनाना चाहता हूँ। कोई तुझको मेरी मानिंद पिंजरे में कैद कर ले, तुझे कैसा तब लगेगा ये बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने पर दिए हैं परवाज़ करने खातिर, उड़ने दे मुझको जालिम, उड़ना मैं चाहता हूँ। अफलाक की बुलंदी महसूस मैं करूँगा, लहरा के पंख अपने उसे छूना चाहता हूँ। आज़ाद पंछियों को उड़ते जो देखता हूँ, रोता है दिल ये मेरा और बैन भी करे है। ये दर्द मैं तुझ तक पहुँचाना चाहता हूँ, उड़ने दे मुझको जालिम, उड़ना मैं चाहता हूँ। रंगीन इन परों को तू खुशी से देखता है, ये खुशी है मेरा मातम ये बताना चाहता हूँ। तू क्यों समझे तेरा दाना अच्छा लगे है मुझको, मैं तलाश अपना खाना खुद करना चाहता हूँ। मेरी आहाज़ारियों पर मजबूरियों पे दुख पर तेरी सोच क्यों न जाए ये समझना चाहता हूँ। फरियाद मेरी सुनकर मुझे तू आज़ाद कर दे, मस्ती की हौसले की परवाज़ चाहता हूँ। उड़ने दे मुझको जालिम, उड़ना मैं चाहता हूँ। आज़ाद मुझको कर दे, आज़ादी चाहता हूँ, आज़ादी चाहता हूँ। एक ऐसे शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ जो अपनी नज़्मों में मुहाकात, तख़य्युल, एहसास और जमाल की खुसूसियात से अपनी नज़्मों को एक मुनफरिद रंग अता करता है। मेरी मुराद आंध्र प्रदेश से तशरीफ़ फरमा नूर मीम जालिब से, नूर मोहम्मद जालिब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। दो आज़ाद नज़्में मुख्तसर सी मुलाज़ा फरमाइए। एक नज़्म का उन्वान है वो गज़ल। खून रिश्ता रहा मेरी गज़लों से मज़लूमों का, खून रिश्ता रहा मेरी गज़लों से मज़लूमों का, इसके अल्फाज से गोला बारूद की गंदी बो आती है, इसके अल्फाज से गोला बारूद की गंदी बो आती है। शायरी नाम था जिस दुल्हन का कभी, शायरी नाम था जिस दुल्हन का कभी, आज वो एक बेवा नज़र आती है, आज वो एक बेवा नज़र आती है। क्या हुई वो गज़ल जिसमें था हुस्न इश्क, क्या हुई वो गज़ल जिसमें था हुस्न इश्क, क्या हुई वो गज़ल जिसमें थी नग़मगी, क्या हुई वो गज़ल जो थी कुल लज़्ज़तों से भरी, क्या हुई वो गज़ल जो कभी बायसे चैन थी, क्या हुई वो गज़ल जिसमें थी चूड़ियों की खनक, क्या हुई वो गज़ल जिसमें थी चूड़ियों की खनक, क्या हुई वो गज़ल की अदा, क्या हुई वो गज़ल की अदा जो मेरे रूह की थी ग़िज़ा। शायरी नाम था जिस दुल्हन का कभी, आज वो एक बेवा नज़र आती है, आज वो एक बेवा नज़र आती है। एक और आज़ाद नज़्म मुख्तसर सी जिसका उन्वान है आईना एहसास। रिफ़ाक़तें हैं अदावतें हैं, रिफ़ाक़तें हैं अदावतें हैं, मोहब्बतों का निशान नहीं है, मोहब्बतों का निशान नहीं है, वो प्यार का अब समा नहीं है। हर एक पल मेरे जहन में बस यही है ख़दशा, हर एक पल मेरे जहन में बस यही है ख़दशा कि जा रही है कहाँ ये दुनिया, कि जा रही है
کہاں یہ دنیا پتہ نہیں ہے، میں کس کو سمجھاؤں کیا بتاؤں، میں کس کو سمجھاؤں کیا بتاؤں، میں اپنے دل کے لطیف جذبے کسے دکھاؤں، میں اپنے دل کے لطیف جذبے کسے دکھاؤں، اگر دکھاؤں تو اس کا حاصل، اگر دکھاؤں تو اس کا حاصل، سب اپنی مرضی کے خود ہے مالک، میرے خدایا مجھی کو کیوں تو نے ایسا دل دیا ہے، مجھی کو تو نے رلا دیا ہے تجھ سے یہ التجا خدایا، ہے تجھ سے یہ التجا خدایا، میری بس اب ایک یہی دعا ہے، میری بس اب ایک یہی دعا ہے، بدل دے دنیا دلوں کی اب تو، بدل دے دنیا دلوں کی اب تو، یا پھر مجھے بھی بنا دے پتھر، یا پھر مجھے بھی بنا دے پتھر۔ ادبی دنیا کا ایک معتبر نام ڈاکٹر نگار سلطانہ ہے، جنہوں نے اپنی شاعری کو زندگی کی دھوپ چھاؤں سے آگاہ کیا ہے اور زندگی کی تلخ و شیریں مرحلوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے کون ہے دوشی۔ چاہت کے رشتے ناتوں کی ڈور تھی کچی ٹوٹ گئی، سپنوں کا جو رنگ محل تھا شیشوں کا ایک ڈھیر بنا ہے، سپنوں کا جو رنگ محل تھا شیشوں کا ایک ڈھیر بنا ہے، کب تک آخر آنکھ لڑائیں ان کے ایک ایک ٹکڑوں سے، کب تک آخر آنکھ لڑائیں ان کے ایک ایک ٹکڑوں سے، دل کو دکھانے کا حاصل جان گنوانے کا حاصل، دل کو دکھانے کا حاصل جان گنوانے کا حاصل، اشک بہانے کا حاصل اپنی تباہی کا حاصل، اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں تمہارا دوش نہیں ہے، اس میں ہمارا دوش نہیں ہے، دوش تو ہے ان رشتوں کا، دوش تو ہے ان نعتوں کا، دوش ہے بس میری چاہت کا اور کسی کا دوش نہیں۔ ایک دوسری نظم فسون تنہائی۔ سلگتی چاندنی پر ہول رات کے سائے، سلگتی چاندنی پر ہول رات کے سائے، سکون حد سے بہت دور ہوتا جاتا ہے، سکون حد سے بہت دور ہوتا جاتا ہے، وہ یاد ماضی کے رنگیں خوش ادا لمحے، وہ یاد ماضی کے رنگیں خوش ادا لمحے، ایک ایک کر کے گزرتے ہیں دل کی راہوں سے، ایک ایک کر کے گزرتے ہیں دل کی راہوں سے، بہت اداس ہے، بہت اداس ہے ماحول زندگی کا بھی، بہت اداس ہے ماحول زندگی کا بھی، کوئی ستارہ ہی ٹوٹے کہ یہ فسوں ٹوٹے، کوئی ستارہ ہی ٹوٹے کہ یہ فسوں ٹوٹے۔ اور نظم جس کا عنوان ہے دھندلکا۔ مدھم سی چاندنی ہے، مدھم سی چاندنی ہے، میرا دل اداس بھی ہے، مدھم سی چاندنی ہے، میرا دل اداس بھی ہے، یادوں کے آئینے میں، یادوں کے آئینے میں شکل ڈھونڈتی ہوں، یادوں کے آئینے میں شکل ڈھونڈتی ہوں، کوئی نہیں وہاں اب ایک سایہ رہ گیا ہے، کوئی نہیں وہاں اب ایک سایہ رہ گیا ہے، مدھم سی روشنی میں جو ہے جھکائے سر کو، مدھم سی روشنی میں جو ہے جھکائے سر کو، چہرہ ہے دھندلا دھندلا
پہچاننا ہے مشکل۔ مدھم سی روشنی میں جو ہے جھکائے سر کو، چہرہ ہے دھندلا دھندلا پہچاننا ہے مشکل، پر اجنبی سے جذبے یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے، پر اجنبی سے جذبے یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے، وہ کوئی اپنا ضرور ہی ہے، وہ کوئی اپنا ضرور ہی ہے۔ شعر و ادب کی زمین مزید وسیع تر اس وقت ہو جاتی ہے جب سخنور صنف ادب کے تنوع میں اپنا امکان ڈھونڈ لیتا ہے۔ انہی امکانات کو پیش کرنے والا شاعر جناب اسماعیل سعید آندھرا پردیش سے، میں ان سے التماس کرتا ہوں وہ اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محسوس فرمائے۔ نظم کا عنوان ہے گما سے یقین تک۔ رواں زمانے کی وسعتوں میں، رواں زمانے کی وسعتوں میں نگاہ وزداں اٹھا کے دیکھو، نگاہ وزداں اٹھا کے دیکھو، یقین کے پردے ہٹا کے دیکھو، ہر ایک چہرے پہ سازشیں ہیں، عداوتیں ہیں، بناوٹیں ہیں، ہر ایک چہرے پہ سازشیں ہیں، عداوتیں ہیں، بناوٹیں ہیں۔ منافقت میں منافقت ہے ضمیر انسان، منافقت ہے ضمیر انسان، ہوس کی مٹی خمیر انسان، ہوس کی مٹی خمیر انسان، نہ جستجو میں نکھار باقی، نہ جستجو میں وقار باقی، دیار ہستی دیار بستی کی ظلمتوں میں، دیار بستی کے ظلمتوں میں انا کے تاریک بتکدے ہیں، خمار بستی کے سلسلوں میں ادھورے جذبوں کے قافلے ہیں۔ تجھے گما ہے مجھے یقین ہے، تجھے گما ہے مجھے یقین ہے، کسی کو اپنی خبر نہیں ہے، نظر میں احساس مر چکا ہے، نظر میں احساس مر چکا ہے، شعور و انسان پگھل چکا ہے، شعور و انسان پگھل چکا ہے، دلوں میں الفت کا داغ لے کر کوئی تو آئے چراغ لے کر، کوئی تو آئے چراغ لے کر، محبتوں کے تمام رستے اندھیری وادی میں ڈھل رہے ہیں، تمام چہرے بدل رہے ہیں، تمام چہرے بدل رہے ہیں، تمام چہرے بدل رہے ہیں۔ حالات زندگی میں تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز اور انسانی ذہنی کشمکش کو شاعرانہ پیکر عطا کرنے والا شاعر جناب یوسف رحیم کرناٹک سے التماس کرتا ہوں وہ آئیں اپنی نظم سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ آئیے ایک عید پر نظم سماعت فرمائیے گا۔ ابھی عید گزری ہے۔ بعد مدت کے وطن پہنچا ہے اپنے، بعد مدت کے وطن پہنچا ہے اپنے، عید پردیسی نے دیکھی یوں وطن کی، اپنے ہوں یا ہوں پر آئے، یہاں سبھوں کا ایک چلن ہے، لاس لوگوں میں بجا ہے، لاس کا لگنا بھی فن ہے، جو نہ دیکھا تھا وہ منظر، جو نہ دیکھا تھا وہ منظر سامنے ہے اور گھر گھر، جو نہ دیکھا تھا وہ منظر سامنے ہے اور گھر گھر، بھول جاتے ہیں صدا اپنوں کو اپنے، لوگ خنجر بھالا نیزہ ہیں، دلوں میں تیر ہونا جانتے ہیں، بستی اپنوں میں کہاں ہوتی ہے ان کی، بستے ہیں یہ فاصلوں سے بھی پرے کچھ، کوئی ملنے آئے تو لگتے ہیں ایسے یہ گلے کچھ، جیسے خنجر کوئی، جیسے خنجر کوئی، جیسے خنجر کوئی شہرک سے خری فوراً ہی پہنچے، دل نکالے دل کا ماتم کرنے بیٹھے، عید پردیسی نے دل اپنا کھویا، عید پر پردیسی نے دل اپنا کھویا، لوگ شہرک کو چرانے آئے تھے اور لوگ شہرک کو چرا کر مطمئن لوٹے ہیں گھر، عید پر پردیسی کھوئے اور کیا کیا، کھونے کو ہے اور بچا کیا، بعد مدت کے وطن پہنچا ہے اپنے۔